بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضی اللہ عنہا فقال ضملوني. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کی ابتدا کی گئی وہ نیند میں اچھے خواب تھے، چنانچہ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کے روشن ہونے کی طرح واضح ہو جاتا، پھر آپ کے دل میں اکیلے رہنے کی محبت ڈال دی گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں اکیلے رہتے، اور اس میں آپ کئی راتوں تک اگر آئے بغیر عبادت کرتے رہتے تھے۔ تحنث کا معنی گناہ چھوڑنا ہے، لیکن اس جگہ اس کا معنی تعبدہ یعنی عبادت کرنا ہے، اور اس کے لیے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے تھے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اتنی ہی راتوں کا کھانے پینے کا سامان لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے مجھے پکڑا اور مجھے خوب دبایا، یہاں تک کہ میری برداشت کی انتہا تک پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں بالکل پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دوبارہ دبایا، یہاں تک کہ میری برداشت کی انتہا تک پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں بالکل پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس نے مجھے تیسری دفعہ دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب نہایت کرم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے، آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواعب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن أم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب الإبرانية، فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا
ऊदिया वहीं युद्रिकनी यौम का अंसुर नसरन मुअज्जरन तुम लम यंशब वरकतु अन तुफिया व फतर अल वहयु। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी यहाँ तक कि आपकी घबराहट ख़त्म हो गई। तो आपने खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा और उन्हें यह वाक़या सुनाया, यकीनन मुझे अपनी जान का खौफ पैदा हो गया है। खतीजा ने आपसे कहा, नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रसवा नहीं करेगा। बिलाशुबा आप रिश्तेदारी को मिलाते हैं और बोझ उठाते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं उसे कमा कर देते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ ताला की तरफ से पेश आने वाली मुसीबतों में मदद करते हैं। फिर खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वरका बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास गई, जो खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा के बेटे थे, जो जहलियत के ज़माने में नसरानी हो गए थे। वो अबरानी लिखना जानते थे और तौरात में से अबरानी ज़बान में जो अल्लाह चाहता लिखते थे। वो बहुत बूढ़े थे और नबीना हो गए थे। खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे कहा, मेरे चचा ज़ाद भाई अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने आपसे कहा, भतीजे तुम क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा था उन्हें बताया। तो वर्का ने आपसे कहा, ये वही नामूस साहब राज फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया था। काश मैं इन दिनों कुव्वत वाला होता, काश मैं उस वक़्त ज़िंदा होता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो क्या वो मुझे निकाल देने वाले हैं? उन्होंने कहा, कोई आदमी कभी इस जैसी बात लेकर नहीं आया जो तुम लेकर आए हो, मगर उससे दुश्मनी की गई। और अगर मुझे तुम्हारे उस दिन ने पाया तो मैं तुम्हारी बहुत कभी मदद करूँगा। फिर वर्का ज़्यादा देर नहीं रहे कि फौत हो गए और वही का वक्फा हो गया। फ़ायदा नंबर 1, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या पेश आया उस वक़्त उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा नहीं हुई थी। लामहला उन्होंने किसी से सुनकर इसे बयान किया है। ज़ाहिर यही है कि उन्होंने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, क्योंकि इसमें यह अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसने मुझे पकड़ा और खूब दबाया। बिलफर्ज अगर किसी और से सुना होगा तो किसी सहाबी ही से सुना होगा, और इस पर उम्मत का इत्तिफाक है कि सहाबा सब आदिल हैं, इसीलिए सहाबा की मुरसल रिवायत भी हुज्जत है। नंबर 2, नबूवत की इब्तिदा अच्छे ख्वाबों से होने में हिकमत यह है कि फरिश्ते से मुलाकात की इस्तेदाद पैदा हो जाए, क्योंकि मुमकिन था कि आप यकलख्त मुलाकात बर्दाश्त ना कर सकें। ये जो फरमाया कि सबसे पहले जिस वही की इब्तिदा हुई वो अच्छे ख्वाब थे, तो ये इसलिए कि वही के अलावा कई चीज़ों के साथ इशारा इससे पहले भी हो चुका था। मसलन वो पत्थर जो बेअसत से पहले आपको सलाम किया करता था, सही मुस्लिम। नंबर 3, ये मुद्दत जिसमें वही सिर्फ अच्छे ख्वाबों की सूरत में थी 6 माह थी, जैसा कि बैहकी ने जिक्र किया है। और ये मुद्दत रबीउल अव्वल से जो आपकी वलादत का महीना है रमज़ान तक है, और ज़माना नबूवत कुल 23 बरस है। फतहुल बारी। अकेले रहने की मोहब्बत डाल दी गई, यानी आपको सबब का पता नहीं चलता था कि ऐसा क्यों है। हकीकत में ये चीज़ अल्लाह ही की तरफ से थी, और इसमें हिकमत यह थी कि आपका दिल दुनिया की तमाम बातों से खाली होकर वही इलाही के लिए तैयार हो जाए। अगरचे इसका सबब यह भी था कि आपको जहलियत के अखलाक व आदाब और मुशरिकाना अकायद व अमाल से शदीद नफरत थी। नंबर 4, गारे हिरा मक्का में मशरिक की जानब से दाखिल हो तो दाएं जानब चंद मील के फासले पर हिरा नामी पहाड़ की चोटी पर वाक़ है, जो बहुत ऊंची थी और रास्ता भी दुश्वार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ रातों को अकेले रहना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेआबाद पहाड़ों में रातों को अकेले कौन रह सकता है। हिरा और कुबा दोनों लफ्ज़ ऐसे हैं कि उन्हें मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों तरह और मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों तरह से पढ़ना जायज़ है। इस तरह उन्हें अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा दोनों के साथ पढ़ा जा सकता है। नंबर 5,
यतहन्नसु हिरसुल गुनाह को कहते हैं, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है वकानु युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम अल-वाक़िया, और वो बहुत बड़े गुनाह शिरक पर अड़े रहते थे। इस लिहाज से इसके माना हो गए गुनाहगार होते थे। यहाँ ये माना दुरुस्त नहीं, इसलिए इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह ने इसकी तफसीर फरमाई, यतअब्बदु यानी इबादत करते थे। ये माना इस सूरत में होंगे जब बाब तफ़ाउल की यहाँ तर्के माखुद के लिए करार दिया जाए, यानी हर किस्म के गुनाह से बचते थे। ये ऐसे ही है जैसे यतहर्रजु का माना है गुनाह से बचते थे। हदीस के मतलब में इस तरह के इजाफे को मुदरज कहते हैं। नंबर 6, आपके पास हाका आ गया, यानी फरिश्ता वही लेकर आ गया। फरिश्ते का आपको दबाना बेगानगी दूर करने के लिए था। वही के अल्फाज इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से शुरू हुए। नंबर 7, आप रिश्तेदारी को मिलाते हैं। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 औसाफ जिक्र किए। सही बुखारी किताब तफसीर 4953 में एक छठा वसफ़ व तस्दुकुल हदीथा, और आप बात सच्ची करते हैं भी है। इससे उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा की कमाल अकल का पता चलता है, और यह भी कि उनका मुशाहिदा कितना कवी और दुरुस्त था, हत्ता कि उन्हें यह भी यकीन था कि उन औसाफ वाले शख्स को अल्लाह ताला कभी रुसवा नहीं करेगा। यहाँ माँ युखज़ीका के अल्फाज हैं। सही बुखारी के बाज़ नुस्खों में माँ यहज़ुनुका के अल्फाज हैं, यानी अल्लाह आपको कभी गमगीन नहीं करेगा। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कमाल अकल, अपने खामद की हद दर्जा दिलजोई और हर तरह से उनकी घबराहट दूर करने की कोशिश से भी ज़ाहिर है। नंबर 8, वर्का बिन नौफल और ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल दोनों जहलियत में बुत परस्ती से बेराज थे। दोनों शाम गए तो वर्का को एक नसरानी राहिब मिला जो तहरीफ से पहले के तीन पर था, चनाचे वो नसरानी हो गए। इसकी दलील यह है कि वर्का इंजील के आलम थे, इसलिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की। इंजील का माना बुशरा यानी खुशखबरी है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत थी, हत्ता कि इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद इस्मुहु अहमदु भी मौजूद था। अबरानी में लफ्ज़ फारकलीत अहमद का हम माना है। मौजूदा अनाजील दर हकीकत सीरत की किताबें हैं जो रफ़ा मसीह के 60-70 साल बाद उनके शागिर्दों ने लिखी हैं। इनमें अक्सर बातें मुसन्नफ़ हज़रात की हैं जो मसीह अलैहिस्सलाम के सुमारह हयात हैं। इस वक्त हुकूमत की ज़बान यूनानी थी और सीरत की वो किताबें यूनानी या अबरानी ज़बान में थी। वैसे शाम की आम ज़बान सुरियानी थी, इसलिए गालिब ख्याल ये है कि असल इंजील सुरियानी ज़बान में थी। वल्लाहु आलम। वर्का ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए किया कि उनका जिब्रील अलैहिस्सलाम से हम कलाम होना ज़्यादा मशहूर था, और इसलिए भी कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, जिनमें मसीह अलैहिस्सलाम भी थे, तो रात के अहकाम पर अमल करते थे। ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल का जिक्र सही बुखारी में अपनी जगह आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नंबर 9, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का खलक़ पहली वही में पढ़ने का हुक्म देने से पहले की पढ़ने की अहमियत मालूम होती है। अल्लाह ताला ने पढ़ने का हुक्म देते वक्त अपने रब होने और पैदा करने की नेमत का जिक्र फरमाया, क्योंकि सबसे पहले और बड़ी नेमत पैदा करना है, बाकी नेमतें इसके बाद हैं। खलक ही ना हो तो कुछ भी नहीं, खलक ही ना हो तो कुछ भी नहीं। दूसरी नेमत रब होना यानी परवरिश करना है, यानी उन नेमतों वाली हस्ती के नाम की बरकत से पढ़, उसकी बरकत से तो कारी भी बन जाएगा, उसकी बरकत से तू कारी भी बन जाएगा। अल्लज़ी खलक जिसने पैदा किया का मफ़ऊल महज़ूफ़ कर दिया गया है कि किसे पैदा किया, यानी जब पैदा करना उसी का काम है, तो फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं कि किसे पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, रहम में करार पकड़ने के बाद नुत्फ़ा सबसे पहले अलका की शक्ल अख्तियार करता है। अली का या अलकू चमटने को कहते हैं। अलकतुल जमा हुआ खून जो रहम की दीवार के किसी हिस्से से चिपक जाता है। अलका का दूसरा माना जोंक है।
وہ بھی کسی نہ کسی کو چمٹ جاتی ہے۔ خون کی وہ پھٹکی شکل و صورت میں جونک سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اس میں نہ جان ہوتی ہے، نہ شعور، نہ عقل و علم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حقیر سی پھٹکی سی انسان جیسی عظیم مخلوق پیدا فرما دیتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہشت زدہ ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ فرمایا، پڑھ، تجھے وہ پڑھا رہا ہے جس سے زیادہ کرم والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کے کرم کی انتہا ہے کہ اتنی حقیر چیز سے پیدا ہونے والے انسان کو علم جیسی بلند ترین صفت سے نواز دیا، بلکہ قلم کے ساتھ علم سکھایا جس سے محفوظ ہوتا اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو علم محدود پھر معدوم ہو جاتا۔ تفسیر القرآن الکریم از مترجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔